Hello everyone, I Rupali Singh welcome all of you in my channel, and today we will be discussing some digest of landmark judgments which are basically related to Dowry Prohibition Act 1961. Alright, so let's start the session. First of all, we will discuss the most important case, that is S. Gopal Reddy versus State of Andhra Pradesh 1996. Okay, so ये जो केस है ये एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 का है. इसकी मैं आपको एक बैक स्टोरी बताऊंगी एंड देन जो फाइनल जो हेड किया गया था वो हम यहाँ पर देखेंगे. क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके फैक्ट्स क्या क्या थे. सो द अपीलेंट एंड हिज ब्रदर, ऑलराइट, देयर वर टू पर्सन्स, अपीलेंट एंड हिज ब्रदर वर ट्राइड फॉर ऑफेंसेस under section 420 IPC read with section 4 Dowry Prohibition Act 1961. क्लियर है? तो यहाँ पर एक अपीलेंट होता है, एक पर्सन होता है एंड उसके जो भाई होते हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं. किस किस चीज के चार्जेस हैं? सेक्शन 420 IPC है और आपका सेक्शन 4 है यहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का. क्लियर है? सेक्शन 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेक्शन है ये लगाया जाता है डिमांड फॉर डाउरी के लिए, जो ऑलरेडी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ, इसके ऊपर मैं सेशन ले चुकी हूँ. ठीक है? एंड यहाँ पर जो सेक्शन 420 है ये आपका क्या है? चीटिंग, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ऑलराइट, सो बेसिकली इट इज section 420 is related to cheating. All right, and the trial court convicted them both and sentenced them to undergo 9 months rigorous imprisonment and to a fine of rupees 500 each, and in default to undergo simple imprisonment for 4 months of the offence under section 420 IPC and to rigorous imprisonment for 6 months and a fine of rupees 1000 each, and in default simple imprisonment for 6 months for the offence under section 4 of the TP Act. क्लियर है? तो यहाँ पे उनको क्या पनिशमेंट दी गई? तो ये पनिशमेंट उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया था 9 मंथ्स का, या फिर आप 500 रुपीज दोनों को जो है फाइन देना था. इसके अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट आप इन डिफॉल्ट जा सकते थे. ठीक है, वो लोग जा सकते थे 4 मंथ्स की अंडर सेक्शन 420 IPC, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स एंड रुपीज 1000 ईच जो है वो फाइन लगता. इसके डिफॉल्ट में भी सिंपल imprisonment 6 months for the offence under section 4 of the act. Clear है? In an appeal against their sentence and conviction, the additional metropolitan sessions judge held that no offence under section 420 IPC was made out and set aside their conviction and sentence for the said offence while confirming their conviction and sentence for the offence under section 4 of the act. Both the convicts unsuccessfully invoked the revisional jurisdiction of the high court. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर इनकी जो सेक्शन 420 IPC की जो ऑफेंस है, ठीक है, उसको तो सेट असाइड कर दिया था जो आपके एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज थे, लेकिन इनको जो सेंटेंस हुई थी वो सेक्शन 4 DP एक्ट के अंतर्गत हुई थी. अब इसकी बैक स्टोरी क्या है? ठीक है, PW1 was looking for marriage alliance for his daughter Miss Vani. The date of marriage, however, was to be fixed after consulting the first accused. PW1, however, later on insisted on having an engagement ceremony and contacted the first accused, but the first accused persuaded PW1 not to rush through the same, as it was not possible for him to intimate the date to his friends at a short notice. The second accused also insisted that the said amount should be paid before the marriage. He threatened to get the marriage cancelled if PW1 failed to comply with the settlement as arrived at on the earlier occasions. Both the first accused and his brother, the second accused, were thereafter charge sheeted and tried for offences punishable under section 420 IPC, read with an offence punishable under section 4 of the act and convicted and sentenced as noticed above. Clear है? तो यहाँ पे एक पर्सन थे PW1, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, मिस वानी जिनका नाम था, ठीक है, जो कि SBI बैंक की एम्प्लॉय थी. साथ ही में यहाँ पे जो फर्स्ट एक्यूज हैं वो एक IPS ऑफिसर थे एंड उनके भाई, दोनों ने ही यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर डिमांड ऑफ डाउरी रखी. ठीक है, उन्हें कार चाहिए था, उन्हें एक घर चाहिए था,
एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग उन्होंने डिमांड की। उन्होंने ये थ्रेटन किया कि अगर ये सारी चीजें अगर उन्हें शादी के पहले नहीं मिली, सो द मैरिज विल बी कैंसल्ड। फिर इसके अगेंस्ट PW1 जो कि एक लॉयर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपील किया एंड काफी जो है उनका केस चला। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज हुआ whether the demand of dowry made during negotiations of marriage amounts to an offense under section 4 of the Dowry Prohibition Act 1961। ठीक है, जो सेक्शन 4 है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, क्या जब भी मैरिज कि जो प्रपोज्ड मैरिज है, क्या उनमें जो नेगोशिएशंस है, ठीक है, उसमें डिमांड ऑफ डाउरी के अंतर्गत आएगा या फिर नहीं आएगा। क्लियर है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ था। द कोर्ट मस्ट, जो रूलिंग आई उसने क्या कहा, द कोर्ट मस्ट लुक एट द ऑब्जेक्ट विद द स्टैट्यूट seeks to achieve while interpreting any of the provisions of the act. A statute is best interpreted when we know why it was enacted। क्लियर है, तो रूलिंग क्या आई कि हमें किसी भी जो भी आपकी स्टेट्यूट है उसको क्या करना है, उसको प्रोविजंस, जो एक्ट के प्रोविजंस है उसके तहत जो है वो क्या करना है, आपको इंटरप्रेट करना है, उसका मीनिंग निकालना है। ठीक है, और ये ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी लॉ को या किसी भी रूलिंग को अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर हम उसे ये ध्यान में रखते हैं कि उसको क्यों बनाया गया है, तो उसको बेस्ट उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। क्लियर है, the expression dowry under the act must be interpreted in the sense which the statute wishes to attribute to it। क्लियर, यहाँ पे जो वर्ड डाउरी आया है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग हमें उसे देखना होगा। एंड डाउरी इज अ क्विड प्रो क्यो फॉर मैरिज is prohibited and not the given additional presents to the bride or bridegroom by friends or relatives। ठीक है, क्विड प्रो क्रियो का मतलब है इसके बदले में। ठीक है, डाउरी यहाँ पर जो मैरिज के बदले में नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर मैरिज के बदले में डाउरी दी जा रही है तो उस पर प्रतिषेध लगाया गया है, दैट मीन्स इट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन अगर ब्राइड को या ब्राइडग्रूम को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स प्रेजेंट दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो वो डाउरी के केस में नहीं आएगा। फिर the High Court accepted the evidence of PW1 to hold the appellant had demanded enhanced dowry of 75,000 for purchase of car on his return from the native village and repeated his demand at the time of Var Puja and later on did not marry Miss Vani as PW1 was unable to meet the demands as projected by the appellant and his elder brother। Clear है, अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने 50,000 समथिंग जो है डिमांड रखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने डिमांड को और बढ़ा दिया। ठीक है, देन डिमांड को इंक्रीज करके इन्होंने 75,000 कर दिया बिकॉज दे वांटेड टू परचेज अ कार। क्लियर है, एंड दे हैव अगेन रिपीटेड द डिमांड ड्यूरिंग वर पूजा एंड later on the accused did not marry Miss Vani। Clear, because PW1 was unable to meet the demands as per by the appellant or as his elder brother. Fine. However, the evidence of PW1 suffers from serious inconsistencies and exaggerations. The evidence on the record does not establish the case against the appellant beyond a reasonable doubt. The conviction and sentence of the appellant is hereby set aside। Clear है, बट कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ एविडेंसेस तो बिल्कुल सही थे। ठीक है, बाकी कुछ एविडेंसेस में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज थी। ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट था, इस वजह से यहाँ पे जो इनका कन्विक्शन था उसको सेट असाइड कर दिया गया। क्लियर है, एनालिसिस क्या कहती है, एनालिसिस सेज दैट अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल फॉर डिमांड ऑफ डाउरी टू बिकम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट it must be made at the time of marriage and not during the negotiations for marriage। However, section 4 of the act, mere demand of dowry is sufficient to bring home the offense to an accused। The definition of expression dowry contained in section 2 of the act cannot be confined merely to the demand of money, property or valuable security made at or after the performance of marriage as is urged by Mr. Rao। The courts must critically analyze the evidence and decide the case in a realistic manner। The evidence of an expert is a rather weak type of evidence, and the courts do not generally considering it as offering conclusive proof and therefore safe to rely upon the same without seeking independent and reliable corroboration। Clear है, अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस क्या कहती है। यहाँ पे लर्नेड काउंसिल ने कहा कि डिमांड ऑफ डाउरी जो है वो प्रपोज्ड मैरिज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है,
दैट मीन्स कि अगर ड्यूरिंग मैरिज जब भी आप बात चल रही है तो उस टाइम पे अगर नेगोशिएशन चल रही हैं तो वो डिमांड फॉर डाउरी को कवर नहीं करेगा, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेक्शन 4 मियर डिमांड ऑफ डाउरी, ठीक है, अगर सिर्फ डिमांड भी रख दी गई है शादी के लिए एंड जिसके फुलफिलमेंट ना हो पाने की वजह से शादी कैंसिल हो सकती है, तो वो भी जो है इसके अंडर में जो है कवर किया जाएगा, सेक्शन 4 ऑफ डीपी एक्ट के अंतर्गत में कवर किया जाएगा। क्लियर है, जो ऑलरेडी मैं आपको जब मैंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। क्लियर है, and then the conclusion was the court set aside the conviction and sentence of the appellant as the evidence on the record does not establish the case against the appellant beyond a reasonable doubt। क्लियर है, तो कंक्लूजन यहाँ पर ये रहा कि जो अपीलेंट थी उनकी जो भी कन्विक्शन थी या सेंटेंस थे उनको सेट असाइड कर दिया गया था। क्लियर है, एंड जो फाइनल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का वो क्या था, एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर the Supreme Court was of the opinion that the phrase demand for dowry was to be flexibly interpreted। ठीक है, जो डिमांड फॉर डाउरी है इसको फ्लेक्सिबली इंटरप्रेट करना चाहिए। इन दिस केस दिस मेंट that any demand of money, property or valuable security made from the bride or her parents or other relatives by the bridegroom or his parents or other relatives or vice versa would fall within the ambit of dowry under the act, even where the demand is not properly referable to any legally recognized claim and is in consideration of marriage. Marriage in this context included a proposed marriage, and particularly where the non-fulfillment of the demand of dowry leads to the marriage not taking place at all। क्लियर है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था उन्होंने कहा कि डिमांड फॉर डाउरी ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको कि बहुत ही फ्लेक्सिबली इंटरप्रेट करना चाहिए, और ये जो डिमांड है ये मनी, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी की भी हो सकती है, ब्राइड या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव से ब्राइड ग्रूम के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया जा सकता है, या वाइसी वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ डाउरी। ठीक है, ये डाउरी के अंतर्गत आएगी। एंड डिमांड, ये जो डिमांड है इसको जो है लीगली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, और लीगली रिकॉग्नाइज क्लेम किया गया है या फिर इसे कंसीडर किया गया है मैरिज के लिए, या कोई भी प्रपोज मैरिज ही क्यों ना हो, अगर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड नहीं हो पाती है और मैरिज कैंसिल होती है तो इट विल कवर द डिमांड ऑफ मनी। क्लियर है, एंड इट वाज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एस गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996। क्लियर, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, बचनी देवी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट 2010 का ये आपका केस है। ठीक है, 2011 का केस है। चलिए देखते हैं इसमें क्या फैक्ट्स थे जो कि कवर किए गए हैं। बेसिकली दिस केस टॉक्स अबाउट व्हाट इज डाउरी डिमांड। ठीक है, इस केस में बताया गया है कि आखिर डाउरी डिमांड है क्या, दहेज की जो मांग है वो क्या है। In Bachni Devi versus the state of Haryana 2011, the Supreme Court stated that any demand of any property or valuable security which is in way connected with marriage constitutes dowry demand। ठीक है, कुछ भी डिमांड अगर की गई है, कुछ भी मांग की गई है किसी प्रॉपर्टी, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, और जो कि मैरिज से रिलेटेड है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका डाउरी डिमांड में मांगा जाएगा। ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था सेक्शन 30 है आईपीसी का। क्लियर, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे, ठीक है, क्या क्या इसकी बैक स्टोरी है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। कांता देवी जिनकी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, वॉज मैरिड टू द अक्यूज्ड इन May 1990। ठीक है, इनकी शादी हुई अक्यूज्ड से 1990 में। 2 months after the marriage, the deceased mother-in-law, accused one, went to her father's house and demanded a motorcycle as her son, accused two, wanted to start a house milk vending business. But as the father of the deceased was very poor, he was a rickshaw puller, he indicated his inability to fulfill the डिमांड। क्लियर है, हुआ ये कि कांता देवी जिनकी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, उनकी शादी के 2 मंथ बाद उनकी सास उनके पिता के घर जाती है और एक मोटरसाइकिल की डिमांड रखती है कि उनका बेटा जो है वो दूध बेचने का मिल्क वेंडिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसको एक मोटरसाइकिल की जरूरत है। लेकिन क्योंकि कांता देवी के जो पिता थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, वो रिक्शा चालक थे जो कि उनके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते थे।
Thereafter, the husband and mother-in-law of the deceased start harassing her badly and told her father that if he does not give a motorcycle, they will not allow Kanta Devi to live in the matrimonial house. Clear है? तो फिर क्या हुआ कि इनके जो हस्बैंड थे और उनकी जो मदर इन लॉ थी वो कांता देवी को बहुत ज़्यादा हैरेस करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो कांता देवी अपने मैट्रिमोनियल हाउस यानी कि अपने ससुराल में नहीं रह सकती है। The husband of the deceased took her to her father's house 5 days before the Raksha Bandhan, left her there and returned to his house on the same day. क्लियर है? एंड कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो कांता देवी के हस्बैंड थे वो उनको उनके पिता के घर ला करके रक्षाबंधन के 5 दिन पहले छोड़ देते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। The deceased told her father about the harassment and ill treatment done by her husband and mother-in-law. But 2 days before Raksha Bandhan, Kanta was taken from her parents' house by her husband, asserting that his brother's engagement was to be performed. The statement made by her husband was utterly false. क्लियर है? और यहाँ पे जो डिसीज है यानी कि जो कांता देवी है वो अपने पिता को बताती है कि उनके साथ किस तरह से जो है बुरा बर्ताव किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हैरेसमेंट एंड इल ट्रीटमेंट है ये आपका आता है सेक्शन 498A आईपीसी के अंतर्गत। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अमेंडमेंट। ठीक है, सेक्शन ये जो अमेंडमेंट है ये आपका 2018 के बाद में ये अमेंडमेंट किया गया है आईपीसी में। ठीक है, जो कि काफी कुछ कवर करता है। इसके लिए स्पेशली आपका चैप्टर 20A जो है वो बनाया गया है। क्लियर है? आईपीसी में। एंड देन व्हाट हैपेंड कि वो हाँ, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले क्या होता है, वापस से कांता देवी को उनके हस्बैंड ले आते हैं और वो उनको अपने घर ले जाते हैं, ये कहते हुए कि उनके भाई की एंगेजमेंट है, जो कि बिल्कुल भी गलत था। After about 8 days, on 12th August 1990, the father of the deceased was informed by other villagers that Kanta was dead. When her father went to the house of accused 1 and 2 along with some other person, he saw the dead body of the Kanta lying in the room. And as Kanta's death appeared to have taken place in unnatural circumstances, the father of the deceased filed a case. ठीक है, उसके 8 दिन बाद उनके जो पिता हैं उनको ये गांव वालों से पता चलता है कि कांता की मृत्यु हो गई है। ठीक है, जब वो उनके जो पिता हैं वो एक्यूज 1 और एक्यूज 2 यानी कि उनके ससुराल जाते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे देखते हैं कि उनकी जो डेड बॉडी है वो रूम में रखी हुई है एंड जो इनकी डेथ है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के तहत हुई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो है वो डाउरी डेथ का केस भी बनता है, विच कवर्स सेक्शन 304 आईपीसी ऑल्सो। क्लियर है? तो उन्होंने एक केस फाइल किया और इसमें जो जजमेंट आया वो क्या था? द ट्रायल कोर्ट हेल्ड हर मदर इन लॉ एंड हस्बैंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304B of the IPC. They were given punishment of 7 years of rigorous imprisonment. When the appeal was made to High Court, it agreed to the trial court and appeal was rejected. The appeal was then made to the Supreme Court. The apex court held that demand for any property or valuable security having nexus with marriage constitutes dowry demand and the cause or reason for such demand is immaterial. It observed that the deceased was harassed by the accused after her father denied fulfilling the demand. Hence, harassment driving the deceased to commit suicide is dowry death. Accordingly, the appeal was rejected by the Supreme Court and the time of 2 months was given to accused 1 to surrender for going through the imprisonment conferred to her. Clear है? तो यहाँ पर इनका जो जजमेंट आया वो क्या था? उनका जजमेंट था कि जो ट्रायल कोर्ट है उनकी मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड को इस क्राइम के लिए उन्हें गिल्टी प्लीड किया गया। ठीक है, सेक्शन 304B के तहत उनको 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया। ठीक है, जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की तो उसको रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट किया में अपील की, वो भी रिजेक्ट कर दी गई और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर मैरिज से रिलेटेड मांगी जाती है तो वो डाउरी डिमांड आएगी और उसका कारण या कुछ भी रीजन जो है आप डिमांड का बता दीजिए। ठीक है, वो क्या होगा? वो इमटेरियल होगा, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। क्लियर है? और इसके साथ ही में यहाँ पे जो डिसीज थी यानी कि जो कांता थी उनको हैरेस भी किया गया था। ठीक है, जब उनके पिता ये डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए थे तो यहाँ पे ये जो हैरेसमेंट है वो डाउरी डेथ को का क्राइम जो है वो क्रिएट करता है। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपील जो है वो क्या कर दी थी? रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, finally it was held that the Supreme Court
held that the appellant's demand for a motorcycle for use of the second appellant's business was a demand for dowry, and it was particularly important to the court in deciding this case that the victim who died by committing suicide had been harassed and ill-treated once the demand for the motorcycle was not met. क्लियर है? यहाँ पे जो मोटरसाइकिल की डिमांड थी, भले ही उन्होंने बिजनेस के लिए ही डिमांड क्यों ना की हो, बट ये डिमांड फॉर डाउरी थी क्योंकि उसके साथ में इल ट्रीटमेंट और हैरेसमेंट हुआ था, जिसके चलते कांता देवी ने सुसाइड कर लिया था. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है आपका अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 2010 का केस है. ये भी एक काफी ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट था. लेट्स सी इसमें क्या हुआ था. ठीक है, द डिसीज्ड and accused Ashok Kumar were married on 9th October 1986, wherein the father of the deceased had given sufficient dowry at the time of her marriage according to his means, desire and capacity. But the appellant and his family members were not satisfied with the dowry. They allegedly used to harass and maltreat the deceased and used to give her beatings. They had demanded a refrigerator and a television, etc. 1 week prior to the date of occurrence, the deceased came to the house of her father at Cathal and narrated the story. She specifically mentioned that her husband wanted to set up a new business for which he required a sum of rupees 5,000, which could not be managed by her parents, due to which the accused and his family members alleged to have burnt the deceased by sprinkling kerosene oil on her, as a result of which the deceased died. Also, as post-mortem, cause of death was shock and dehydration, which resulted from extensive injuries which were anti-mortem. क्लियर है? यहाँ पे जो डिसीज था, ठीक है, वो और जो अक्यूज थी, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई थी और जो अक्यूज जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था अशोक कुमार, इनकी शादी हुई 9 अक्टूबर 1986 में. उनकी शादी के दौरान जो डिसीज थी, उनके फादर ने अपनी मतलब अपने हिसाब से, अपने मीन्स एंड कैपेसिटी से उन्होंने जितनी डाउरी वो दे सकते थे उन्होंने दिया. ठीक है, लेकिन जो अपीलेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स हैं वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए. वो उनकी जो बेटी थे उनको हमेशा हैरेस करते थे, मालट्रीट करते थे, ठीक है, उनको मारते पीटते थे. एंड अगेन दे हैव डिमांडेड रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन एंड अदर थिंग्स. ठीक है, और इन सब के होने के 1 वीक पहले जो डिसीज थी वो अपने घर गई थी, दैट मीन्स अपने फादर के पास गई थी, ठीक है, टू मीट हिम इन कैथल. और उन्होंने उनको पूरी बात बताई कि उनको बिजनेस, दैट मीन्स उनके हस्बैंड को बिजनेस करने के लिए 5,000 रुपीज चाहिए और भी चीजें चाहिए, ठीक है, जो कि उनके पेरेंट्स के द्वारा मैनेज नहीं किए जा सके. और अल्टीमेटली जो डिसीज थी, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको क्या किया, उनके ऊपर केरोसिन का ऑयल डाल करके जला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. ठीक है, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ जो पता चला वो शॉक और डिहाइड्रेशन था, लेकिन जो एंटीमार्टम हुआ उसमें ये भी पता चला कि उनको बर्न इंजरीज थी, ठीक है, और उनको काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था. ठीक है, इसके अलावा the Supreme Court partially accepted the appeal and accused was awarded sentence of 7 years rigorous imprisonment. It is stated that at the time of occurrence, the accused was present at home and failed to protect or save deceased from burn, which caused her death. Marriage itself had survived for a short period, nearly 1.5 years. Cruelty and harassment to deceased was stated to be caused by mother-in-law of deceased and brother-in-law of deceased. They had been acquitted by High Court for total lack of evidence. The court further observed that neither state nor complainant had preferred appeal against judgment of acquittal. Clear है? So यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, अक्यूज को 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी. ठीक है, और ये स्टेट किया गया और ये बताया गया कि जिस टाइम पे ये हो रहा था, यानी कि कैरोसिन ऑयल डाल करके उनकी हत्या की जा रही थी, उस टाइम पर एक्यूज जो है वो घर पे प्रेजेंट थे, फिर भी उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की. और ये जो मैरिज थी वो भी काफी शॉर्ट पीरियड तक के लिए थी, 1.5 year थी. तो दैट मीन्स इनकी जो डेथ है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हुई है. ठीक है, क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट था, सेक्शन 498A आता है, यहाँ पर सेक्शन 304B अप्लाई होता है, जिसके तहत उनको ये सजा सुनाई गई थी. ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अदर केसेस को भी यहाँ पर क्या किया, रेफर किया, जैसे कि राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कस्टमरी गिफ्ट्स के लिए.
2008 का केस था सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें 12 पॉइंट्स जो है वो डाउरी के लिए रिलेटेड बताए गए हैं, वो भी हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जो कि मैरिज से कनेक्टेड था। 2001 का केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल असावा, not restricted to agreement or demand for payment of dowry before and at the time of marriage but even included subsequent demands 2004। ठीक है, इस केस में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल असावा में ये बताया गया कि यहाँ पे जो डाउरी का केस है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज या बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज ही नहीं इंक्लूड होगा। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी अगर सब्सिक्वेंट डिमांड्स है यानी कि डिमांड पे डिमांड की जा रही है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। And further, it referred to the case of Kalya Perumal versus the state of Tamil Nadu AIR 2003, which in which ingredients for raising presumption section 304B जो है वो बताया गया है। क्लियर है? The court sided with the decisions of other courts wherein the husband had demanded a specific sum from his father-in-law and upon not being given, harassed and tortured the wife and after some days she died. Such cases would clearly fall within the definition of dowry under the Act. क्लियर है? तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बताया कि हस्बैंड अगर कुछ भी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, फादर इन लॉ से और नहीं देने पर अगर वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं या हैरेस कर रहे हैं और उसके कुछ दिन बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो है वो डाउरी के केस में आपका अप्लाई होगा। ठीक है, फर्दर इट ऑब्जर्व दैट एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ, ठीक है, बेसिकली ये जो आपका जजमेंट था उसमें ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सून बिफोर हर डेथ। ठीक है, इट कैन नॉट बी गिवन अ रिस्ट्रिक्टेड और नैरोअर मीनिंग। इसको हम नैरोअर मीनिंग नहीं दे सकते हैं। रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सून बिफोर डेथ, द कोर्ट स्टेटेड दैट the interpretation given should be one which would avoid absurd results on the one hand and would further the object and cause of the law so enacted on the other, and stated that this expression would normally imply that there has to be reasonable time gap between the cruelty inflicted and the death in question। क्लियर है? तो यहाँ पर बताया गया है कि सून बिफोर हर डेथ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी मृत्यु होने के तुरंत पहले ही यहाँ पर जो सून बिफोर डेथ है ये माना जाएगा क्रूअल्टी के लिए। ठीक है, इनके बीच में अगर थोड़ा गैप भी है, ठीक है, अगर क्रूअल्टी 3-4 महीनों से चली आ रही है और उसके 2 महीने बाद किसी की डेथ होती है, सो इट विल इंक्लूड दी सून बिफोर हर डेथ। ऑलराइट, द कोर्ट ओपाइंड दैट cruelty and harassment by the husband or any relative could be directly relatable to or in connection with any demand of dowry. The expression demand for dowry will have to be construed adjustum generis to the word immediately preceding this expression. Similarly, in connection with the marriage, is an expression which has to be given a wider connotation. It is of same significance that this expression should be given appropriate meaning to avoid undue harassment or advantage to either of the parties। क्लियर है? यहाँ पर adjustum generis एक वर्ड आया है, एक फ्रेज आया है जिसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि जब दो या दो चीजें एक जैसी होती है, ठीक है, तो उसको एक साथ में इंटरप्रेट करना है और उसको दूसरे केस पर भी एज इट इज अप्लाई करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोर्ट ने जो भी हैरेसमेंट है बाय दी हस्बैंड और एनी रिलेटिव या कोई भी क्रूअल्टी है, तो ये कनेक्शन अगर ये रिलेटेड है मैरिज से, सो इट विल बी डिमांड फॉर डाउरी। एंड डिमांड फॉर डाउरी ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे को रिलेट करता है, यानी कि अगर एक केस पे एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको इंटरप्रेट करना चाहिए दूसरे केस के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे इन कनेक्शन विद द मैरिज को भी वाइडर कॉनोटेशन में देखा जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। ठीक है, एंड finally, in the case of Ashok Kumar versus the state of Haryana, Supreme Court confirmed that where a husband has demanded a specific sum from his father-in-law and on it not being given has tortured and harassed his wife, this will qualify as a demand for dowry। क्लियर है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कुछ भी हस्बैंड जो है वो स्पेसिफिक सम अगर फादर इन लॉ से डिमांड करता है, ना देने पर वाइफ को परेशान करता है या टॉर्चर करता है, तो वो डिमांड फॉर डाउरी का केस क्वालिफाई कर जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट जो केस है 1986 का केस है, इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक। क्लियर है? चलिए देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऑलराइट, सो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर वाइडर डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 498 आईपीसी की। क्लियर है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट था। यहाँ पे दो केसेस, दो पेटिशंस थी। ठीक है, एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन को भी यहाँ पर जो है ओरिजिनल केस जो था उसको तो डिसाइड करना ही था, साथ में क्रिमिनल मिसलेनियस केस को भी यहाँ पर डिसाइड करना था। ठीक है, सो बाय वे ऑफ दिस जजमेंट 2 petitions and 2 criminal miscellaneous applications are being decided. One petition registered as criminal miscellaneous was filed by Inder Raj Malik and 3 others against an order of Shri R.K. Jain, Metropolitan Magistrate, New Delhi. ठीक है, यहाँ पर एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई थी इंदर राज मलिक और 3 अदर्स के खिलाफ। ठीक है, जो कि आपकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर आया था मिस्टर R.K. जैन का, उसके अगेंस्ट किया गया था। एंड दैट ऑर्डर वाज पास्ड ऑन ए कंप्लेन ऑफ श्रीमती सुनीता मलिक, हियर एंड आफ्टर referred to as the complainant। ठीक है, और ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट था? जो सुनीता मलिक ने कंप्लेन की थी उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आया था। While the aforesaid order, the learned magistrate directed the summoning of the petitioners hereinafter referred to as the accused in respect of commission of an offence punishable under section 498 IPC, and also summoning accused number 1 and 2 in respect of commission of an offence punishable under section 406 IPC. Clear? And the other petition, being criminal miscellaneous main, was filed by the complainant. Her grievance is that all the accused should have been summoned in respect of commission of the offence punishable under section 406 IPC. Clear? And 327 IPC read with section 109 in addition to something under section 498 IPC. Therefore, she prays that all the accused should be directed to be summoned accordingly. क्लियर है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। ठीक है, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or fine or with both. क्लियर? यहाँ पे जो सेक्शन 406 है ये पनिशमेंट के बारे में बताता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो पनिशमेंट है ये आपको बताया जाता है सेक्शन 406 में। ठीक है, सेक्शन 327 की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन 327 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन एन इलीगल एक्ट। क्लियर? सो सेक्शन 327 जो है वो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का सेक्शन है। एटलीस्ट ये सेक्शंस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेने के लिए अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जानबूझकर तो वो क्या हो जाएगा? सेक्शन 327 आईपीसी। एंड यहाँ पे जो रेड विथ सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 109 आईपीसी। ठीक है, जो कि ब्राइब देने का केस बनता है। ठीक है, whoever abets the offense, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो सेक्शन 109 है ये पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका अबेटमेंट का केस बनेगा यहाँ पे। तो ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो लगाए गए थे अलोंग विद सेक्शन 498A, दैट मींस क्रूअल्टी एंड हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे यहाँ पे जो एप्लीकेंट थी सुनीता मलिक और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस यहाँ पर किया। ठीक है, और यहाँ पे फाइल करने के बाद जो कंप्लेनेंट थी यानी कि जो सुनीता मलिक थी उनकी ये प्रेयर थी कि वो क्या चाहती थी, सेक्शन 406, सेक्शन 327 अलॉन्ग विद सेक्शन 109 एंड 498 के तहत उनको समन भेजा जाए और उनको जो उनके हस्बैंड है जो एक्यूज्ड है उनको बुलाया जाए। क्लियर? द कंप्लेनेंट एंड इंदर Raj Malik, accused number 1, were married on 8 February 1981. Accused number 2 is the mother, and accused number 3 and 4 are the brothers of Inder Raj Malik.
दैट इज एक्यूज नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है सुनीता मलिक और जो उनके हस्बैंड थे एक्यूज नंबर 1 दैट इज इंदर राज मलिक, इनकी शादी 8 फरवरी 1981 को हुई थी। ठीक है, और जो अक्यूज नंबर 2 है वो इनकी मदर है। अक्यूज नंबर 3 एंड 4 इनके इंदर राज मलिक के दोनों भाई हो जाते हैं। For the purpose of deciding both the petitions as well as the criminal miscellaneous applications, it is necessary to know as what allegations are contained in the complaint and what preliminary evidence had been produced before the learned magistrate. The allegations in the complaint filed by the complainant are briefly as follows. The accused are greedy people. They were interested in having a huge dowry. They started making demands. Originally, the marriage was arranged to be celebrated in Claridge's Hotel. At the instance of the accused, the venue was shifted to Taj Hotel, which meant higher expenses for the parents of the complainant. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर इसके फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लर्नेड काउंसिल ने एविडेंसेस की जांच की, उनको देखा और यहाँ पर ये पता चला कि ये जो एक्यूज थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है ये बहुत ही ज्यादा ग्रीडी पीपल थे, लालची लोग थे। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा डाउरी चाहिए थी, वो डिमांड्स पर डिमांड्स करते गए। ठीक है, ओरिजिनली जो सबसे पहले ये जो मैरिज थी उसको जो है वो कहाँ पे होना था, वो क्लारिजेस होटल में होना था, बट बाद में उसको चेंज करके क्या कर दिया गया कि ताज होटल में इसमें जो है मैरिज को ऑर्गेनाइज कराया जाए, जिससे कि उनके पेरेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गया। With a view to extort more and more money and articles, the complainant, after the marriage, was maltreated, beaten, starved, and abused. The parents of the complainant went on meeting some of their demands. The aforesaid maltreatment and beating was especially done on the festivals. On 19th February 1982, she was tortured mentally and physically to the extent that she fainted in her matrimonial home, yet no doctor was consulted. Clear है? ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने के लिए, ठीक है, चीजों के डिमांड करते गए। ठीक है, और जो कंप्लेनेंट था दैट मीन्स जो सुनीता मलिक थी उनके साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, उन्हें भूखा रखा गया। ठीक है, हैरस किया गया। और जो पेरेंट्स थे, जो सुनीता मलिक के पेरेंट्स थे, वो कुछ कुछ डिमांड्स को जो है वो शादी के बाद भी पूरा करते गए, लेकिन ये जो माल ट्रीटमेंट था या ये जो बीटिंग थी वो खत्म नहीं हुई। ठीक है, स्पेशली त्योहारों पर उनके साथ में मारपीट की जाती थी। 19 फरवरी 1982 को उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया मेंटली एंड फिजिकली, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में ही बेहोश हो गई और उसके बावजूद कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। The parents of the complainant wanted to take her to the parental home, but the accused did not allow. ठीक है, और जो सुनीता मलिक के पेरेंट्स थे वो उनको अपने घर ले जाना चाहते थे, बट फिर भी जो एक्यूज था उसने उसको अलाउ नहीं किया, उसको नहीं जाने दिया। She was ultimately taken to the parental home on 20th February 1982. She was pregnant and gave birth to a child on 25th August 1982. Not only that, she was not looked after by any of the accused and had to be looked after by her parents. None of the accused came to see her. The delivery took place at Segal Nursing Home. The atrocities of the accused went on. At one point of time, accused number 2 and 4 came to her parental home and threatened to kill her and forcibly take away the child. Clear है? फिर उसके बाद अल्टीमेटली पेरेंटल होम 1982 20 फरवरी को वो गई एंड शी वाज प्रेग्नेंट एंड आफ्टर दैट शी हैज टेकन अ बर्थ टू अ चाइल्ड टू 25 अगस्त 1982 में उन्होंने एक बेबी को बॉर्न किया। एंड उसके बावजूद किसी भी एक्यूज के द्वारा, दैट मीन्स उनके ससुराल में ना ही उनके हस्बैंड आए या उनकी फैमिली से कोई भी आया, किसी ने उनका जो है ख्याल नहीं रखा। अल्टीमेटली उनका ख्याल उनके पेरेंट्स ने रखा। ठीक है, और उसके बाद भी उनकी जो एट्रोसिटीज हैं वो कंटिन्यू रही। ठीक है, उनके जितनी भी हैरेसमेंट था वो कंटिन्यू रहा एंड उनको पेरेंटल होम आकर यानी कि सुनीता मलिक के मायके आकर के उनको जो है जान से मारने की धमकी दी गई और उनके बच्चे को छीनने की धमकी दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो क्या था। ठीक है, Section 498A of the IPC 1908 and Section 4 of the DP Act 1961, subject to the double jeopardy provision of Article 20 Clause 2 of Indian Constitution. ठीक है, यहाँ पर जो Section 498 IPC है, यानी कि ये जो आपका क्रूअल्टी बाय हस्बैंड है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहता है,
यहाँ पर क्या कहता है कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, सेक्शन 4 जो कि आपका पनिशमेंट को बताता है, पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डाउरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डबल जियोपार्डी प्रोविजन बनता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का, और क्या ये बनता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एंड इस सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी 1908 अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये आपका एक अल्ट्रा वायरस जो है यहाँ पर सेक्शन 498 अल्ट्रा वायरस है कि नहीं, यानी कि एक्टिंग और डन बियॉन्ड वंस लीगल पावर और अथॉरिटी। ठीक है, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप बियॉन्ड लीगल पावर के काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन दिया कि अ पर्सन कुड बी कन्विक्टेड अंडर बोथ सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर यहाँ पे जो पनिशमेंट दी जाएगी, क्या सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 4 डीपी एक्ट दोनों के अंतर्गत दी जाएगी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जी हाँ बिल्कुल, दोनों के अंदर पनिशमेंट जो है यहाँ पर दी जाएगी accused को. The court held that section 498A IPC and section 4 of the DP Act are distinct, since under section 4 of the DP Act mere demand of dowry is subject to punishment, whereas in section 498 an act of cruelty committed against a newly wedded woman is punishable. As a result, it is possible to conclude that a person is subject to prosecution under both section 4 of the DP Act and section 498A of the आईपीसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही जो सेक्शंस हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। आईपीसी में सेक्शन 498A ये बताता है कि कोई भी अगर वाइफ है, उसके साथ में हस्बैंड ने या फिर उसके रिलेटिव्स में ने अगर हैरेसमेंट किया है, उसके साथ क्रूअल्टी की है, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। ठीक है, ये एक अलग बात होगी। और सेक्शन 4 जो आपका डीपी एक्ट है, उसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, तो ये एक अलग केस हो गया। और दोनों ही चीजें एक साथ भी हो सकती हैं, एक वाइफ के साथ जो है डिमांड ऑफ डाउरी की भी बात की जा सकती है और उसके अगेंस्ट में क्रूअल्टी भी की जा सकती है। इसलिए ये दोनों सेक्शन जो हैं वो डबल जियोपार्डी यानी कि को क्वालिफाई नहीं करते हैं। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही सजा के लिए दो बार एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट देना, तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 5 केसेस हैं जो आज हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लास्ट केस, वद्दे रामा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1990 का ये आपका केस था। ठीक है, इसमें क्या किया कहा गया, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर 20A टू द आईपीसी। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 1983 का, उसने एक चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया आईपीसी में, और वो चैप्टर था 20A। This new chapter provided for offences of cruelty by husband or relatives of husband, and section 498A was inserted into the code under the said chapter. The Supreme Court has observed that this section has given a new dimension to the concept of cruelty for the purposes of matrimonial remedies, and the type of conduct described in this provision is relevant टू प्रूव क्रूअल्टी। क्लियर है? अब ये जो सेक्शन आया था 498A, ये एप्लीकेबल होता है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के ऊपर अगर वो कुछ भी क्रूअल्टी या फिर इल ट्रीटमेंट या हैरेसमेंट कर रहे हैं वाइफ के साथ में, तब। ठीक है, and the provisions under section 498A considers the following aspects as cruelty by husband and relatives। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी ये देख लेते हैं। A willful conduct by husband or his relative to drive the woman to commit suicide or to cause her grave injury or danger to life, limb or health. It is to be noted that health under this section includes physical as well as mental health of the women। ठीक है, अगर हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स के द्वारा women को, ठीक है, सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है, या फिर उनको ग्रेव इंजरी पहुंचाई जाती है, ठीक है, क्षति पहुंचाई जाती है, उनकी जान को खतरा है, उनके हेल्थ को नुकसान है, ठीक है, और यहाँ पे हेल्थ से मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों है, तो ये जो है वो सेक्शन 498 के का जो क्राइम है वो क्वालिफाई कर जाएगा। क्लियर? सेकेंड जो आपका सेकेंड पॉइंट कहा गया वो क्या कहा गया, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन विद द व्यू टू कोर्स हर
to give or get any unlawful demand for any property or valuable security. The provision also covers the coercion imposed on the persons related to women to meet the same unlawful demands of the husband or his relatives. ठीक है, अगर किसी women को harass किया जाता है और उसे ये मजबूर किया जाता है कि वो किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के डिमांड करे अपने घर वालों से, ठीक है, और उनके या फिर उनके घर वालों को उस रिलेटेड मतलब उस वुमेन के कितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनको मजबूर किया जाता है कि वो डिमांड को पूरा करें, तो ये भी सेक्शन 498 के अंतर्गत कवर किया जाएगा. The wrongful demand by husband or his relatives may not always be as marriage demand. जरूरी नहीं है कि ये जो डिमांड है वो मैरिज रिलेटेड ही हो, ठीक है, कुछ और बहाना बता करके भी या कुछ और बातें कह करके कि हमें बिजनेस चलाना है, हमें मोटरसाइकिल चाहिए या हमें इतने पैसों की जरूरत है, ठीक है, ये भी जो है वो मैरिज की डाउरी डिमांड को के अंतर्गत जो है वो कवर किया जाएगा. In the case of the state of Punjab versus Daljit Singh, the court held that demand for money after 4 years of marriage for a specific purpose, nowhere related to marriage demand, but causing harassment to wife so much that she was made to end her life, is sufficient for conviction under section 498A. ठीक है, एक केस आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलजीत सिंह में, उसमें ये कहा गया कि अगर डिमांड फॉर मनी की गई है किसी और पर्पस के लिए भी, ठीक है, शादी के 4 साल हो गए, किसी और पर्पस के लिए जो है डिमांड की गई है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज, लेकिन वो डिमांड फुलफिल ना कर पाने पर उस वाइफ को जो है काफी परेशान किया जाता है, उसको काफी हैरेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली, ठीक है, दैट मीन्स उसने सुसाइड कर लिया, तो भी सेक्शन 498A एप्लीकेबल होगा. ठीक है, Thus, the offence of cruelty by husband or his relative is not added as an offence against marriage under Chapter 20. The Section 498A provides wider protection than being a matrimonial remedy. Therefore, all harassments and violence against women while demanding for money or any other valuables are considered as cruelty under this provision. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कुछ भी ऑफेंस है जो कि क्रूअल्टी ऑफेंस ऑफ क्रूअल्टी अगर हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया है, तो ये आपका चैप्टर 20 में कवर नहीं होता था, जिसके लिए सेक्शन 498A जो कि आपका चैप्टर 28 है, ये लाया गया. ठीक है, और ये एक मैट्रिमोनियल रेमेडी की तरह से लाया गया है, और इसके अंतर्गत अगर मनी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी हैरेसमेंट या वायलेंस होता है तो इस सेक्शन को कवर कर लिया जाएगा. सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 2 क्लॉज 1 section 2 clause 1 and 4 of Dowry Prohibition Act 1961. The provisions under the Dowry Prohibition Act necessarily requires that dowry should have been given or agreed to be given. But in the case of provisions under section 498A IPC, mere demand for dowry is considered as an offence. The explanation 2 of section 498A mentions the word demand for property or valuable security, which clarifies that mere demand for dowry is an offence under section 498A, unlike the provisions of Dowry Prohibition Act, which requires payment of dowry or dowry agreed to be paid. Clear है? यहाँ पर ये जो सेक्शन 498A है, ठीक है, या फिर हम सेक्शन 4 की बात करें या हम सेक्शन 2 क्लॉज 1 की बात करें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, तो इसमें जो अगर डाउरी देने की बात कही गई है या एग्री किया गया है कि हाँ हम देंगे या दे चुके हैं, ठीक है, ये आपका एक ऑफेंस आएगा, सेक्शन 498A को कवर करेगा. ठीक है, यहाँ पर डिमांड फॉर प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि पेमेंट की बात की गई हो. वद्दे रामा राव और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में क्या हुआ? इट वॉज ऑन रिकॉर्ड दैट द हस्बैंड accompanied his wife to his in-laws home to ask for the unpaid balance dowry and also demanded for additional dowry. On the way back to her husband's home, wife disappeared and her parents lodged a missing complaint. Later, the body of the wife was found in a river. The court held that the death of the wife was directly in relation to the harassment by the husband, and while he coerced her and her parents to give dowry, the convicted the husband under section 498A. क्लियर? अब यहाँ पर क्या था कि वद्दे रामा राव और जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश था, इसमें ये रिकॉर्ड में था कि उनकी जो वाइफ थी उनको इन लॉस के घर ले जाया गया, वहां पर अनपेड जो बैलेंस डाउरी थी उसकी डिमांड की गई, उसके अलावा एडिशनल डाउरी की डिमांड की गई.
फिर वापस जाते टाइम उनकी जो वाइफ थी, उस अक्यूज की जो वाइफ थी, वो गायब हो गई। ठीक है, उनके लिए उनके पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। बाद में उनकी जो बॉडी है वो एक रिवर से मिली। ठीक है, एक नदी से उनकी जो है डेड बॉडी मिली और उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो डेथ हुई थी, ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका कारण था हैरेसमेंट बाय हस्बैंड, जो कि उनको मजबूर किया उन्होंने डाउरी के लिए, और ये अंडर सेक्शन 498A कवर होता है। And this section not only covers the case of harassment to a wife, but it also covers the cruelty to a mistress. अगर कोई मिस्ट्रेस भी है किसी पर्सन की, तो वो भी जो है इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, वाइफ के अलावा भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A। ठीक है, अगर यहाँ पे पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट यहाँ पर कितनी दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, विच कैन एक्सटेंड टू 3 years, एंड फाइन भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये जो 498 का 498A सेक्शन है, ये कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है? तो ये जो आपका सेक्शन है वो नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन कुछ आपके ऐसे स्टेट्स हैं जिसने कि इसे कंपाउंडेबल बनाया हुआ है, जैसे कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इट वॉज आर्ग्यूड, यहाँ पे फाइनल जजमेंट क्या आया? इट वॉज आर्ग्यूड दैट दी हस्बैंड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव कुड बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ओनली इफ ही और शी directly participated in the actual commission of the offense. This contention was rejected by the Andhra Pradesh High Court. It observed that in its real import, section 304B of the IPC would be applicable if cruelty or harassment was inflicted by the husband or any of his relative for or in connection with demand for dowry immediately preceding the death by bodily injury or by burning. In short, she should have died in abnormal circumstances within 7 years of the marriage. In such circumstances, the husband or the relative, as the case may be, will be deemed to have caused her death and will be liable to punishment. ठीक है, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव है वो किसी भी अपराध के लिए तभी जो है गिल्टी माने जाएंगे अगर उन्होंने डायरेक्टली वो काम किया है, वो अपराध किया है तो। ठीक है, लेकिन ये जो कंटेंशन था ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, और इसमें ये कहा गया कि सेक्शन 304B IPC यानी कि जो डाउरी डेथ है वो तब भी एप्लीकेबल होगी कि अगर किसी वाइफ के साथ में क्रूअल्टी हुई है, हैरेसमेंट किया गया है हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, डिमांड फॉर डाउरी की गई है और उससे पहले उसको जला दिया गया या बॉडीली इंजरी की गई, या इन शॉर्ट किसी भी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर डाउरी के लिए जो है डिमांड भी की गई है या उसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से, तो ये जो है सेक्शन 498A को क्वालिफाई करता है, सेक्शन 304 IPC को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा। इसी तरह के कुछ और जजमेंट्स भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।